Good morning, everyone. I would like to extend a warm welcome to our chief guest, judges, and all the participants on behalf of the eMalang team. In these turbulent times as a global pandemic, this competition asserts itself as a testimony to the fact that music, in fact, is unstoppable. It gives us immense pleasure to realize that each and every one of us present here is as passionate about furthering the culture and passion for music as we are. We are also delighted to announce that we have received participation not only from India but also from the US, London, and Pakistan, among other countries, which goes on to propagate that music as a medium of expression is truly borderless. The entire team has worked extremely hard in translating this event into a reality. I sincerely hope that each and every one of you has a stimulating and a constructive experience through the medium of this particular competition. Now I would like to hand it over to the founder, Ms. Priya Burjata Dhingra. Thank you. After devoting a good 25 years of my life in gaining rich experience in corporate sector, eMalang to us is an avenue to showcase entrepreneurial skills, to be precise, networking and organizing skills, not only for me, but for all the people who are working with us. Being born in a family that has been a pioneer in filmmaking in India, we believe it was perhaps natural for us to create a space in this creative field. The love for art and culture from a very young age, coupled with a deep passion for performing arts in general and music in particular, has resulted in where we are today. While everyone was trying to cope up with the new lifestyle of being at home, stuck in a web of whiling away time by watching Netflix, sleeping, revisiting old pictures, old times, the drive to do something meaningful and bringing people together through a common network gave rise to the thought, why not an e-singing or rapping competition? eMalang. I believe it was the best way of making use of the time in a productive way. Team Malang consists of young, creative-minded people full of energy and enthusiasm, working tirelessly with no time bounds in order to strive for the best. I still remember it was a decision taken in a fraction of seconds that yes, we want to go for eMalang. And then the journey started with no looking back. हम चलते गए, कारवां बढ़ता गया. And today we are here with an immensity of talent, passionate artists who wants to express themselves and be the best along with extremely accomplished judges. We do, in reality, strive for the best. We are really blessed to have very good talented singers and rappers and very good guests and chief guests and judges. We would be giving this trophy to the winners. A certificate, something is of which is of this kind. A certificate like this, ये सबके पास जाएगा. Judges को हम एक छोटा सा felicitation जो भी हम कर सकते हैं. So I would like to call upon हमारे कुछ अच्छे friends and families में से आते हैं Mr. गुरदीप सिंह लकी जी, जो कि हमेशा रहे हैं हमारे साथ, हमेशा साथ खड़े रहे हैं. हमने कोई भी हमारा कुछ भी इवेंट रहा हो, and he started his career with being a DJ, and after that now he owns a event management company of his own. And yeah, लकी जी हमारे साथ हैं. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे सर, बहुत अच्छे सर. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. वेरी गुड प्लेटफॉर्म. तो इनका बेटा एकम is a very young, naturally talented singer, I would say, who is just a young lad, and then after looking at him, I realized that these kids should get a platform. इनको एक platform मिलना चाहिए जहाँ पे वो अपने talent को showcase कर सके. तो एकम, if you are there, if you can just see you. Yeah, yes. Hello. गा के सुनाएंगे? Yes. ये लड़का है अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते होते प्यार होता है. ओ ये लड़का है अल्लाह कैसा है दीवाना. ओ
Thank you, Lucky ji. Thank you so very much. Thank you, thank you. I would like to give it over to Ms. Sangeeta Jain, who would be calling our esteemed judge, Mr. Hyde Karti. So, Sangeeta Jain, if you're there. Yeah, hi everyone. Can you hear me? Yes. Yes, ma'am. Hi. Yes, ma'am, we do. Everyone, thank you for having me. I'm Sangeeta. We would like to take this moment to introduce one of our rap judges, rapper, lyricist, actor, singer, G. Arula's Madrasi Makka's Mr. Hyde Karti. Rapper Hyde Karti has worked with many music directors in Tamil film industry, especially with Thian, Saitendra Seva, Sri Khandeva Diman, Satya Devi, Sri Prasad, and Bobo Sashi. Lyricist Hyde Karti was written number of songs in Tamil film industry, films like Masala Padam, Adiyan, Thapu Thanda, Bandhu Mala, some songs yet to be released. Actor Mr. Hyde Karti has acted in 3 films, Masala Padam, Adiyan, Thani Thanir. International collaboration, he has worked in a Malaysian Tamil film, movie named Bilawan. Music director Shahzuba and done a music video with a Malaysian rapper Psycho Mantra song name called Chennai to Malaysia. Sir, we are glad you could be a part of this event. We would like you to say a few words now. Thank you. Right. Thank you, ma'am. Thank you for introducing me. Awesome. It's a nice intro. It's a very powerful intro. Thank you for that. Yes, I don't have to tell anything because ma'am, I've said everything about me and everything is like very, very true. And I've been in this industry, hip hop and rap industry from the year 2006. And it all started with a song like All We Did, me and Bismack, the other judge for rapping and thing. And we were the first guys who have been doing Tamil hip hop and English rap in Chennai, and we have done mostly like more than, I don't know, maybe 10 films. And one of my films going to get released is called Varunan, and I've rapped in that and I've acted in that. And what much more is, first of all, it's like the first time doing a judge through online. And I'm a little bit nervous, and it's a very different thing. But seeing the happy faces, I think I can handle this, and you guys can, just start the event, and I'm waiting for it. Hyde Karti. I want to ask something, Mr. Hyde Karti. That this Yes. hip hop in Chennai, I guess you guys started in 2007. Am I right? Yes. You're right, ma'am. And if you can tell us some elements about hip hop or something about hip hop as such. Yes, hip hop is not a hard. We call it as a culture, and hip hop rap is a culture, it's attitude. It's not about the music or the lyrics, what you feel in it. You have to feel in yourself. That is called hip hop and rap. And yes, hip hop got 5 elements, which includes rapping, DJing, and graffiti. People used to draw, express themselves on a wall, called graffiti, and b-boying, and the 5th one is called knowledge, the hip hop knowledge. These are the 5 elements, the important elements of hip hop and rap. And yeah, that's the question you asked. Yeah. Thank you so much for being on the show and being throughout the event with us. Thank you so much. See you later. Yeah. Thank you. Thank you, ma'am. Giving it over to Kamini Jain. She would be introducing our next judge. नमस्कार, मैं कामिनी जैन बड़जात्या आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन के हमारे अगले जज सुधीर यदुवंशी जी, उनको बुलाना चाहूंगी। सुधीर जी, आप हैं ना यहाँ पे? सुधीर यदुवंशी जी, नमस्कार जी। सुधीर यदुवंशी जी, आपकी आवाज ही आपकी पहचान है। आप वॉइस इंडिया 2019 हैं, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, माया बाजार बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। कुछ गाकर सुनाइए तो हम सब धन्य धन्य हो जाएं। सुधीर यदुवंशी जी। हाय, सबसे पहले तो नमस्कार और
धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया एज अ जज। थैंक यू सो मच। तो मैं बता देता हूँ अपने बारे में थोड़ा सा। मैं हूँ सुधीर यदुवंशी। सूफी म्यूजिक को और फोक म्यूजिक को, इंडियन फोक म्यूजिक को मैं बहुत फॉलो करता हूँ और रियलिटी शोज मैंने किए हैं और लाइव शोज में लगातार कर रहा हूँ। फिलहाल बंद है पैंडेमिक की वजह से, बट या बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे प्लेटफॉर्म्स की नए टैलेंट को बहुत जरूरत है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। तो जैसे कि आपने कहा कि कुछ गा के सुनाइए, तो मैं इसी तरह का कुछ आपको सभी को कुछ गा के सुनाना चाहूंगा जी थोड़ा सा मोटिवेशनल। जी जी बिल्कुल। धुंधला जाए जो मंजिले, एक पल को तू नजर झुका, हो झुक जाए सर जहाँ वही मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया। सुधीर जी, आपकी आवाज वाकई दिल में उतर गई। हम धन्य धन्य हो गए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अमेजिंग अमेजिंग। सुधीर जी के लिए और कहना चाहूंगी, उन्होंने मराठी प्लेबैक सिंगिंग काफी करी है। अभी एक प्ले आने वाला है बाजीराव मस्तानी, उसके लिए मराठी प्लेबैक सिंगिंग कर रहे हैं। बिहार पॉलिटिकल पार्टीज की प्लेबैक सॉन्ग जितने भी गाए हैं सब सुधीर जी गाते हैं। And last 2 years, nearly more than 400 plus shows within and outside India he has done shows, live shows. So I guess ऐसे लाइव गाने की जो बात होती है वो कुछ और ही होती है। जब इसीलिए हमने इस अपने मंच पर जब हमने कहा हमें कोई स्टूडियो नहीं चाहिए, हमें कोई मिक्सिंग मास्टरिंग नहीं चाहिए, उसका मतलब यही था। इट वाज एज गुड एज लाइव, जहाँ पे आप अपनी वॉइस पुलिंग नहीं करेंगे, आप स्टूडियो में अपनी आवाज को इधर करके आप कुछ भी अच्छा सा गाने नहीं लग जाएंगे। तो ऐसे सामने जैसे आप लाइव गा रहे हैं इस वक्त, सीरियसली आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच टचेस द हार्ट, जो हम देख पाते हैं, वो टैलेंट देख पाते हैं। थैंक यू सो मच सुधीर जी हमारे साथ आने के लिए, हमारे इस शो को जज करने के लिए। आई एम श्योर हमारे जो कंटेस्टेंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको काफी मोटिवेशन मिलेगा आपको ऐसे गाता हुआ देख के। सो मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा कंटेस्टेंट्स आए और वो हमारे इस इवेंट को ज्वाइन करें, पार्टिसिपेट करें। सुनना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच जी, धन्यवाद। So I'll hand it over to Sangeeta Jain to introduce our third judge, BMAC Mastermind. Hello, thank you again. Sylvester Anthony Rose, as also known as BMAC, is a well-renowned Indian rapper, playback singer, songwriter, lyricist, and beat producer who has gained immense popularity over the years in Chennai, owing to his persistence and extremely well-recognized contribution to the South Indian film industry. Being a part of a baffling 23 South Indian movies since 2009 and having released a humongous 131 singles at BMAC.Mastermind, has also participated in the famous Tamil television show Super Singer miniseries, showcasing his rapping prowess. The prodigy was also a part of the Chennai National Live FM along with RJ Jain for the morning show every Thursday. His record also proudly boasts of working with the South legend Ilayaraja Sir for the movie Amma Kanaku. They started hip-hop in Chennai way back in 2007. Let's welcome BMAC Mastermind. Greetings everybody. This is BMAC the Mastermind. I represent Chennai City Hip-Hop. And yeah. So first of all, I would like to thank all of you guys, for bringing me right here into a crazy event. Singing competition and rapping competition is going to be crazy. It's going to be insane for real. So I'm really happy to be a part as a judge
judging new artists who are, who has like real good talents. They need to have that particular stage, in order for them to get their talent, recognized by the artist. Yes. So yeah, so I started hip hop back in 1998, and I had about a couple of tracks that I was working on. Then I started rapping. I started making my own songs. I composed my own beat and mix master my own tracks as well. So for the past 20 years, I'm into hip hop, and yeah, it's been a whole travel, and I did have a mission, and it's on right now. So thank you guys, and thank you Priya for bringing me in as a judge, to meet a lot of other artists, fellow artists, and other singers in as well. And bro, it was a great singing for sure, 100%. Thank you so much for being as a judge as well along with us. Thank you, Priya. Completely our pleasure, sir. And I was just wanted to ask how many years it's been that you've been doing this beatboxing and hip hop. I started in 1998. I started with rap. I used to listen to a lot of old school rap music because it had a lot of blues and jazz mixed with it. So I'm pretty much connected to the 80s and the 90s. So I started writing lyrics, and I started rapping back in 2000. So once after 1998, I was able to frame my own lyrics and all this stuff. So I was getting better at it. You know what I mean? So, and after which, beatboxing came into the scene where once we started hip hop here in Chennai City, our team was called GR Rulers, where Hyde Kari as the other judge, me, B-Mac the mastermind, and there was another artist. So three of us were a team, and beatboxing came into the game back in 2006. So when the scene started emerging in Chennai, there were a lot of other artists who wanted to try out beatboxing, because beatboxing is like, you do not need music, or a track to be played for an artist to sing or to rap on it, right? You just need that rhythm. You need to have the sound of integrated connection with the artist. So beatbox should get connected with the artist and stay along. It's like a sync. You just can't separate both of them. So beatbox has to go in sync with the artist, no matter he's singing or he's going to be rapping. All right. So beatbox is one of the elements of hip hop, as Mr. Hyde Kari explained. So beatbox is one of the elements in hip hop, and yeah. So we're just gaining on, and hip hop is big in India right now, and it's growing each day. And there are a lot of other artists, the next generation, where we're trying to help the next generation to get the right path, So start rapping for better concepts and start rapping better, meaningful tracks. It's going to change the whole world in a matter of 20 to 30 years. You know what I mean? So yeah, I'm pretty happy to be as a pioneer along with Hyde Kari for Chennai City Hip Hop representing. B-Mac, sign out. B-Mac, come on. I like yeah, that. For real, I like that. You want me? I can beatbox a small part if you want. Oh, please do that, yeah. Okay, let me go. Okay. South Indian, put you on the bottom up. Yeah, so let me hit it out with a South Indian, the most famous, we call it Gurmi. It goes like. Yeah. Nice, man. Yo. Come on. Bajatia. Agriculture front. Yo. காதல பிடிய வச்சிருப்போம் ஒட்டப்பட்டு கொடுத்துருப்போம் பிரச்சனை வந்த போதுமா வந்தா ருகிய மடிச்சு கட்டிடுவோம் கட்டில ஒட்டில போனதில்ல திருப்பி சாப்பிட்டதில்ல நிறுத்தி ப்ளூல தரல எனக்கு தெரியும் யாரவே எனக்கு தெரியும்டா இது தம்பி வளர போதில்ல ஹே காதல பிடிய வச்சிருப்போம் ஒட்டப்பட்டு ஏர்போர்ட் இருப்போம் பிரச்சனை வந்த போதுமா வந்தா ருகிய மடிச்சு கட்டிடுவோம் பாச்சாச்சியா also there was a small clip, Yeah, boy. Yeah. Awesome, sir. Awesome. Awesome, man. Nice, man. Respect, man. Straight up respect, bro.
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Super, super. Kalakkitinga, Yeah, super. Just wanted to Kalakkal. say நன்றி ஐயா நன்றி மிக்க நன்றி Kalakkal, kalakkal. மிக்க நன்றி Thank you, Aya. Thank you, Aya. ரெண்டு பேரும் கலக்கிட்டீங்க. Super. definitely we can see that ரொம்ப ரொம்ப maybe நன்றி music, hip hop, rap, language is no barrier. So that's the reason in this online competition we have asked a language is no bar, language is no bar. Any language is more than welcome. I guess we judges are smart enough, people are smart enough to understand. So Sudhir ji, अगर आपके पास किसी और language में कोई entry आती है, I'm sure you will be able to see judge accordingly, right? Language has nothing to do with music as such, right? संगीत अपने आप में एक भाषा है। जी बिल्कुल, दिल को लगनी चाहिए, दिल को छूनी चाहिए, बस जो दिल को छू जाए वो अच्छा लगता है, भले भाषा समझ में आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। Okay, so Teji Sandhu ji is here. Kamini Jain, would you like to take it over? हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार तेजी संधू जी। Welcome. Yes. नमस्कार तेजी संधू जी। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब हम तेजी संधू जी को बुलाना चाहेंगे नेक्स्ट जज की तरह। तेजी संधू जी एक जाने माने बॉलीवुड और बॉलीवुड आर्टिस्ट हैं। आपने 2006 में अपनी पहली सोलो एल्बम गौरी बनाई, जो प्रसिद्ध क्रिकेटर हरभजन सिंह जी ने उनपे मेन रोल किया था। इसी श्रृंखला में और भी एक से एक बढ़कर एल्बम आपने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में घर घर में आपकी प्रसिद्धि हो गई। आपने देश विदेशों में बहुत सारी परफॉर्मेंसेस करी, जिसमें से वडाली ब्रदर्स कनाडा टूर यादगार बन गई। पीटीसी अवार्ड 2011 और कपिल शर्मा शो को बहुत सारी प्रसिद्धि मिली। तेजी संधू जी, आप हमारे बड़जात्या आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के लिए सिंगिंग कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेंट्स को 2 शब्द कहिए और उनका मनोबल भी बढ़ाइए और कुछ गाकर भी सुनाइए। हम धन्य धन्य हो जाएंगे। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो बड़जात्या आर्ट ग्रुप को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इतना बढ़िया ये आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया ऑन फेसबुक और इतने अच्छे कलाकारों को आप मंच पे लेके आए ऑन फेसबुक। तो मैं सारी टीम को बधाई देता हूँ, साथ में दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बड़ा अच्छा दिन और अच्छे दिन पे इतने सारे अच्छे कलाकार सब आप लोग हम लोग ऑनलाइन सब इकट्ठे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं अपना एक फेवरेट गाना सुनाता हूँ, चलते चलते मूवी का गाना। मैं अक्सर गाता हूँ कहीं भी जाऊँ, तो आपको सुनाता हूँ 2 लाइनें उसकी। हाँ, लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, ओ लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, मैंने मारदा जान मैनू सारा, आए तेरी मेरी तेरी 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 मेरी ओह टूटी गई सोनिए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा, सच्चा रब राखा मुंह मोड़ जाने वालिए, हाय मोड़ जाने वालिए, ओ दिल लेके मेरा दिल तोड़ जाने वालिए, हाय तोड़ जाने वालिए, और दिल टूटिया न जुड़े दोबारा, हाय तेरी मेरी मेरी तेरी तेरी मेरी ओ टूटी गई सोनिए, नीचे में टूटे अंबर तो तारा। ठीक है जी, बहुत सुंदर गाया, बिल्कुल दिल में उतर गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। तेजी संधू जी, आजकल आपके लाइव इवेंट्स कोरोना की वजह से थोड़े से हॉल्ट हो गए होंगे, अदरवाइज आपके तो साल में कितने लाइव इवेंट्स होते हैं? कनाडा, यस मैं मोस्टली मेरे 3-4 टूर होते हैं, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया भी गया था। तो यहाँ भी बहुत अच्छे शोज होते हैं, दिल्ली में, पंजाब में, जहाँ भी कोई बुला ले हमें। हमारा तो काम ही है खुशियां बांटना, खुश रहना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी अरदास करते हैं गॉड से कि वो जल्दी ये सारा कुछ ठीक करे, माहौल ठीक हो जाए, तो फिर बड़जात्या आर्ट का एक मंच दिल्ली में ऐसा बड़ा शो हो जिसमें सब बड़े कलाकार बहुत बढ़िया तब रियल सेल्फ में जो गाते हैं, जो लाइव गाते हैं, जो लाइव ऐसे स्क्रीन पे आके गा सकते हैं, जिनको वॉइस पुलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे सारे कलाकारों को हमारा जेन्युइनली एक रिस्पेक्ट है।
स्टूडियो में जाके एडिट करके करना बहुत इजी होता है, बट देन यू नो जी, लाइव बिल्कुल, गाना इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट. सो हमारा इस हमारे कंपटीशन का फॉर्मेट भी इसलिए यही है कि बी रियल. एंड या बी रियल से मतलब मैं ये कहूंगी हमारे पास एक रियल रैपर is in now the show. We have an artist amongst us who's known for his finesse, versatility, and a very strong personality. Rapper and music director Mufad Aka Maharaj in the house. He has collaborated Big fan, sir. major hits with well-known tracks named Kabool Hai, Elan, Backflip, Hookah. Such so much hai are one of the major hits and most loved ones amongst the hip hop audience. But with the twist, he has also delivered a dance number which gave him a lot of versatility in the industry. The romantic track named as Backflip. So let's welcome Maharaj in the house. Welcome, Maharaj. वेलकम है जी. वेलकम जी. I would request everybody else please, A very good morning to everybody. जितने भी लोग देख रहे हैं. Am I visible? Am I audible to everybody? Yeah, please. Yes. Yeah, very much clear. हाँ जी. कैसे हैं सब? बहुत बढ़िया. अच्छी सर, बहुत अच्छी. इतने अच्छे क्या मालूम नहीं अभी. Very good. Big fan, sir. Big fan. सही है. खुश रहने के लिए कोई रीजन नहीं. जय हो महाराज की जय हो. बढ़िया. Thank you so much. स्वागत करती है सर. शुक्रिया. कितने लोग हैं यहाँ पे? 34, 35 समथिंग. बहुत बड़ा फैन हूँ सर मैं. थैंक यू सो मच भाई. थैंक यू सो मच यार. सर आपका रैप आता है सर? प्रजा नाम जापति जुबान कापती है मेरे आगे और सरस्वती विराजती वो गाती नाचती है. लव यू मैन. वाह सर आपका वो वाला रैप कर दीजिए. सारे करो ना. मेरे को यार मन नहीं करता परफॉर्म करने का. सर बहुत हार्ड है, समझ नहीं आ रहा मेरे को अभी तक. लास्ट वाला क्या समझ नहीं आ रहा उसमें? लास्ट वाला समझ नहीं आता, इतनी स्पीड में वो. भाई अच्छा वो वाली लाइन. भाई आपकी लिरिक्स इतनी हार्ड होती है. ईगो फ्रेंडली. देखो एक करके बोलो, क्योंकि सारे गाने एक साथ चला दूंगा तो फिर वो गचड़ बच जाएगी. भाई तेरा सर इंस्टाग्राम लाइव गा दीजिए सर. इंस्टाग्राम लाइव गा दूं? देख लीजिए आपकी फैन फॉलोइंग इतनी है. फ्रैंकली I don't know, I should call you Mufad. You can call me Mufad, yeah, no issue. Okay, Mufad. Mufad. When I got into this rapping field for the first time, I mean, we are one of those जिन्होंने कभी rap इतना सुना ही नहीं था. And when I realized कि ये बच्चे आसपास के they are so much into rapping and they are listening to, so we were not aware of it. And I mean, thanks to this journey of e-rapping competition, e-Malang rapping competition, and my association, I mean our association with you, I can see the fan following, the craziness of people to follow you, the way you sing, the way you, मतलब आपको कॉपी करना, फॉलो करना, आपसे बात करना, आपको देखना लोगों के लिए ड्रीम सा हो गया है somehow. So I'm glad that you know you're here with us on the show, with us in the event, and I can see all the joy on everybody's face, all the rappers. हाँ जी. अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी. How do you think singing और rap में क्या फर्क है basically? सिंगिंग और रैप में देखो मेजरली बहुत ज्यादा फर्क है, एंड एवरीबडी नोज अबाउट दिस थिंग. लाइक सिंगिंग इज ऑल अबाउट मेलोडीज, नोट्स. रैपिंग इज ऑल अबाउट रिदम्स एंड फ्लोज. बिल्कुल. सो ये है कि रैप में आप शब्दों का इस्तेमाल करते हो, गाने के लिए आप सुर का इस्तेमाल करते हो, बट ये है कि द मोस्ट कॉमन थिंग इन बोथ द आर्ट फॉर्म्स आर कि उसमें सोल होना बहुत जरूरी है. जैसे गाता हर कोई है, बट सुर सही से लगाना और सुंदर सुर लगाना वो बहुत जरूरी है ना. तो ऐसे ही जब आप रैप कर रहे हो तो आपके वर्ड्स का जो चॉइस होता है या जो भी एक आपका फ्लो हो गया या केडिंग हो गया, तो वो बहुत ज्यादा सोच समझ के किया हुआ एक बहुत ऑनेस्ट तरीके से निकलना चाहिए अंदर से. पूरा टका आना चाहिए, है ना. टका के हिकदा जोर. भाई आपका नाम बड़ा अच्छा लगा मेरे को, मुफाड़. थैंक यू सो मच भाई. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा. मैं हाँ जी जी कैरी ऑन प्लीज.
नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई के साथ मिलके कुछ भाई करते हैं। मैंने गाना सुना आपका, अभी आप गा रहे थे, मैं ज्वाइन हुआ जस्ट, तो आप गा ही रहे थे जी उस जी टाइम, जी तो जी बहुत जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। सो मुफर, मैं यही कह रही थी कि जैसे ये रियल जो अभी हम लोग गा रहे हैं, रियल अभी जो हम सुन रहे हैं, इस रियलिटी आई मीन जैसे हम कल आपसे बात कर रहे थे और आपने कहा कि रैपिंग इज ऑल अबाउट द रियल सेल्फ ऑफ यू कैन नॉट फेक इट। मैंने आपसे पूछा कि आपको कोई टॉपिक नहीं पसंद तो क्या आप रैप गा सकते हैं, एंड यू सेड नहीं, इट शुड कम फ्रॉम विद इन। सो कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट दैट? Like, see, depend करता है कि if I'm telling something about my life, my story, so it should not be fake, right? But अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला है जिसमें मुझे टॉपिक दिया गया है कि आपको इस स्टोरी लाइन के हिसाब से, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से गाना लिखना है, so that is like whole different scenario. उसमें एक अलग तरीके से हम लिखते हैं, उसमें हमें सिचुएशन में घुसना पड़ता है टॉपिक के हिसाब से, राइट? बट जहाँ तक रैप की बात है, तो मुझे लगता है जो भी आप अपनी लाइफ से रिलेटेड लिख रहे हो या कोई भी आपके एक्सपीरियंस से लिख रहे हो, वो ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है कि आपने क्या लाइफ में देखा है, आपकी क्या सोच है। जैसे हर इंसान की एक अलग सोच है ना, हर इंसान एक अलग जिंदगी से आता है, तो सब अपनी सोच बयान कर रहे होते हैं आर्ट के थ्रू। तो रैप में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट, टू बी रॉ, टू बी रियल इन योर आर्ट फॉर्म। हाँ जी। So that means Straight up, bro. आपके हिसाब से कवर रैप कुछ नहीं होता, जैसे हम कवर सॉन्ग गाते हैं, नहीं, कवर रैप करने वाले कर रहे हैं, बट दैट इज जस्ट फॉर लाइक इम्प्रूविंग योर आर्ट, इम्प्रूविंग योर स्किल्स, कि आप किसी रैपर को कवर करके फ्लोज को प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ है। बट अगर आपको एज एन रैपर आपको आइडेंटिटी आपकी वो करनी है, एस्टैब्लिश करनी है, तो उसके लिए यू हैव टू राइट योर ओरिजिनल थिंग। आपको कुछ ना कुछ ओरिजिनल ही करना पड़ेगा आपकी लाइफ से रिलेटेड या कुछ भी। ओके। हाँ जी। So originality is the key point when it comes to rapping. Yes, indeed. I guess Facts, हम सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ पता है रैप इंडस्ट्री के बारे में, रैप के बारे में। हम जब सुनते हैं हमें लगता है हम भी गा सकते हैं, but I guess it's a different world altogether. Everybody can rap. According to me, everybody can rap, but not everybody can rap good, right? It comes with practice. वो प्रैक्टिस के साथ आएगा जिंदगी करते हुए, क्योंकि हर आर्ट फॉर्म को करते करते आपको एक टाइम आता है कि जब उसको अच्छा करने लग जाते हैं, बिगिनर, फिर प्रो, फिर एडवांस, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। Okay, and one more thing I want to ask, हम लोगों को बहुत एक मिसकंसेप्शन है, मुझे भी था, मतलब I would be very honest, रैप का मतलब होता है अग्रेशन, not necessarily abusive language, but aggression. What's your take on this? कि अग्रेशन रैप में क्या जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कि आप बात क्या बोल रहे हैं। अगर आप कोई रोमांटिक बात कर रहे हो तो आप अग्रेसिव थोड़ी होगे, तो इमोशन तो आपका रोमांटिक उसमें ही रहेगा ना, आप उस तरीके से बात करोगे और उस तरीके से ही आपके वोकल्स आप डिलीवर करोगे गाने पे। तो अग्रेशन तो क्या है कि जो रैपर्स के आसपास एक सराउंड होता है या किसी भी आर्टिस्ट के आसपास सराउंड होता है ना, तो हमारे पास ज्यादा एक फ्रीडम रहती है वर्ड्स के थ्रू उसको बताने की, राइट? तो हमारे साथ अगर कोई भी चीज गलत होती है या कुछ भी हमें सोसाइटी में कुछ गलत लगता है या कोई भी चीज है, तो हम अपनी आवाज उठाते हैं। सो अब अगर किसी चीज का गुस्सा है तो अग्रेशन आना चाहिए, अगर किसी का मजाक उड़ रहा है तो वो मजाकिया उसमें होना चाहिए। लाइक जैसे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूड्स इन एवरी सॉन्ग, right? Like there is humorous song, there is a like many zones are there ना, कि बहुत सारे तरीकों से बनते हैं गाने। रोमांटिक हो गया, सैड हो गया, आजकल गैंगस्टर वाइब बहुत ज्यादा इन है ना, तो वो डिपेंड करता है। बाकी अग्रेशन और इसके लिए तो मेरे को ये लगता है कि अग्रेशन हर किसी के अंदर होता है, निकलता तब है जब जरूरत पड़ती है। I agree completely. Everybody is Completely aggressive, agree. yes. Completely. Yes, yes. So ऐसा कुछ नहीं है कि rap is just aggression, And I ऐसा guess कुछ नहीं है। I guess to some extent aggression is required also in life. I mean, if you're not doing something aggressively and If you're not just aggressive, putting you're not yourself passionate back about what burner, you're doing. If you're exactly. not aggressive, Aggression you're not doesn't- passionate, yeah. I agree. I mean, even if this competition would have not been, we would have not been, taking it aggressively, शायद नहीं होता। अगर हम करते होते, बैक बर्नर पे लेके बैठे होते, वो जितना हो गया, तो वो aggressively कहीं से सब चीजों को लेकर चलना जरूरी है। I agree completely. So how come this rap thing came to you and for last how many years आप rap कर रहे हैं? I guess मेरे को 8 या 9 साल हो गए, शायद 2011 से 20, 9 साल हो गए। So
मेरे कॉलेज डेज की बात है, ये 2011 की बात है कि पहले आई यूज्ड टू डांस, ठीक है। सो डांस करते थे उस टाइम पे, और आई यूज्ड टू एडिट माय म्यूजिक खुद, कि जो भी डांस जिस भी गाने पे कर रहे हैं उसको एडिट वगैरह खुद ही करते थे, मिक्स वगैरह कर लिया, है ना। तो उससे पता लगा कि चलो ठीक है, गाने भी बन सकते हैं, है ना। पहले मुझे पता नहीं था कि गाने कैसे बनते हैं, तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया कि कैसे कैसे होता है। फिर अपने आप ही खुद वो सारा अपने कंप्यूटर पे कर करके सीख गए। फिर धीरे धीरे सारी स्टेप्स जितनी भी होती हैं कि आप गाना रिकॉर्ड कर, जैसे मुझे पता भी नहीं था स्टार्टिंग में ना कि हेडफोन लगा के रिकॉर्ड करते हैं, मैं माइक ऑन करके स्पीकर ऑन करके रिकॉर्ड कर रहा था बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है। तो धीरे धीरे करके पता लगा कि अच्छा मिक्सिंग का प्रोसीजर होता है, मास्टरिंग होती है, आपके रिकॉर्डिंग्स में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, किस किस तरीके के माइक्रोफोन, जितनी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी चीजें टाइम स्पेंड किया अपने म्यूजिक के साथ, अपने काम के साथ, तो धीरे धीरे करके समझ आई। वही चीजें मैं ना बहुत शौकियाना तरीके से करता था पहले, कि जैसे डांस कर रहा हूँ तो इंग्लिश ट्रैक्स पे भी हम डांस करते थे, है ना। सो उस टाइम आई वाज वेरी डम कि मेरे को पता ही नहीं था कि अच्छा इंग्लिश आर्टिस्ट है तो इनके भी मतलब डिफरेंट आर्टिस्ट के नाम पता हो, ऐसा कुछ नहीं पता था। गाना सुन लिया तो सुन लिया, म्यूजिक अच्छी लगी तो बस वो वाला सीन था। फिर मेरे को कुछ मेरे कॉलेज के दोस्तों ने बताया कि ऐसे ऐसे, मतलब मैंने कुछ गानों के ना रट्टे मारे हुए थे इंग्लिश सॉन्ग से, कुछ उस टाइम के हिट्स, जैसे एक वन का स्मैक दैट हो गया, है ना। और ऐसे बहुत सारे गाने थे जो बहुत मेजर हिट्स थे उस टाइम पे, 2011 और उससे भी पहले की बात है। तो मैं उन गानों के रट्टे मारे हुए थे मैंने, और अपने क्या कहते हैं, मेरे कोचिंग सेंटर में एक लड़की पसंद थी मुझे, तो मैं उसको इम्प्रेस करने के लिए मैंने ऐसी रट्टे वट्टे मार लिए है। और मैं सही, अच्छी बात यह कि मैंने रट्टा अच्छा मारा था, मैंने वैसे नहीं मारा था। फिर वो इम्प्रेस हो गई। मैंने भी यही किया था। हाँ इम्प्रेस हो गई थी, इम्प्रेस हो गई थी, हम 7-8 साल साथ में रहे। हाँ इम्प्रेस हो गई थी। गुड गुड। तो वो ये रैप इस तरीके से मेरे उसमें आया। फिर आई गॉट टू नो कि रैप के लिए ओरिजिनलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी रैपर्स हैं सब अपने अपने स्टाइल्स में अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस से लिखते हैं, परफॉर्म करते हैं। सो मुझे समझ आया कि आपकी आइडेंटिटी होनी बहुत जरूरी है। फिर इससे पहले मेरा नाम जो था वो बहुत ज्यादा वॉनेबी टाइप का एक नाम रखा हुआ था। जैसे मेरा नाम जोरा वेरियल लेन, तो उसमें से जितने भी आपके वॉवल्स थे वो सब हटा दिए गए, तो नाम बचा सिर्फ GRV। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार अगर मैं ऐसा कुछ नाम रखता भी हूँ तो इसका कोई रीजन नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कि ये नाम क्यों। फिर 2014 में आई गॉट वेरी सीरियस अबाउट माय म्यूजिक थिंग, ठीक है। आई स्टार्टेड टेकिंग इट वेरी प्रोफेशनली कि मैं आगे कर रहा हूँ तो अगर कल को कोई मुझसे कुछ पूछ ले कि आपने ये नाम क्यों रखा, है ना, तो मुझे पता होना चाहिए। तो फिर मेरे को लगा कि जिस तरीके का मैं बंदा हूँ ना, जिस तरीके का मैं कैरेक्टर हूँ अपनी लाइफ में, उस तरीके का ही कुछ होना चाहिए जो मेरे काम को भी रिप्रेजेंट करे, क्योंकि आई हैव टू बी रियल, है ना। तो मेरी आदत है कि आई डोंट कीप माय माउथ शट, आई ओनली स्पीक व्हेन इट्स नीडेड, बट मैं कभी चुप नहीं रहता किसी चीज को लेके। अगर मुझे कोई चीज वो लगती है, कोई भी कुछ गलत लग गया है, कोई भी अगर मुझे अपना पॉइंट रखना है तो आई पुट इट। अच्छा, मुंह फाड़ और मुंह फट का मीनिंग सेम ही होगा मेरे ख्याल में। यस सेम है। और पहले मुंह फट आया था मेरे दिमाग में, बट मैंने सोचा इसको भूलने में मजा नहीं आ रहा, मुंह फट। हाँ। तो मैंने कहा मुंह फाड़ करते हैं इसको, मुंह फाड़। हाँ। I would request everybody to please switch off. जो जहाँ से बैकग्राउंड साउंड आ रही है ना, प्लीज अपने जरा माइक्स ऑफ करें, सो दैट हम मुफार जी और बाकी सब लोग जो हम बात कर रहे हैं उनको हम सुन पाएं। आई वुड रियली रिक्वेस्ट, अदरवाइज हमें वो उनको मीटिंग से बाहर करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। जी तेजी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मुफार और मुफार में कोई खास फर्क नहीं है। प्रिया जी ने कितने प्यार से धमकी दे दी सबको। मेरी शायद इमेज बहुत खराब होती है। जोरदार। नहीं जरूरी है, ठीक है। तो मेरे लिए रैप का इस तरीके से रहा है। बट अब ये है कि देखो, जैसे मेरे को ना पता नहीं है, लिटरली मेरे को लाइफ के ना अपने 9 साल मुझे नहीं पता कि कहाँ गए हैं, मैंने क्या किया है जिसकी वजह से जो भी लाइफ में हुआ है वो कैसे हुआ है, क्या हुआ है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं पहले दिन भी वही काम कर रहा था, आज भी वही काम कर रहा हूँ, मेरा फोकस आज भी वही है। बाकी चीजें जितनी आसपास आई हैं वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री है ना, कि लोग जानते हैं। दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, है ना, कि उसी से मोटिवेशन मिलती है कि और काम करूं। मुझे क्या लगता है कि मेरा जो काम है वो उसी से मेरे को जाना चाहिए। लाइक लोग मेरे को उसके लिए जानने चाहिए कि ये एक इंसान है, इसका काम ये है और हमें पसंद है ना। वेरी गुड। उसके अलावा मैं आसपास की चीजों पे ध्यान नहीं देता कि क्या है क्या नहीं है, बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी साथ साथ।
तो अगेन हम कहेंगे वी आर ऑल, जो भी यहाँ पर हम लोग सब हैं, हम हैं द रियल अस, जिसमें बिल्कुल 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 जिसमें कुछ फेक नहीं है। हम हाँ जितने जी, सिंगर्स भी हैं, हमारे जजेस हैं, सब रियल, हमारे जितने बिल्कुल। पार्टिसिपेंट्स हैं सब रियल। कोई भी फेक ना बने, मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि अगर आप फेक बनोगे तो आप झूठ की शुरुआत खुद ही कर रहे हो। अगर आप सच्चे रहोगे तो आपको जरूरत नहीं है किसी को बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। हाँ जी। हमारी एक पार्टिसिपेंट है पार्बोनी जी, जो कहना चाह रही हैं कि आई सिंग अग्रेसिवली, डज दैट मेक सेंस? यस, देयर आर मेनी सिंगर्स जो एग्रेसिवली गाते हैं, बट वो जो उनका जॉनरा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड्स, लाइक अगर कोई रॉक म्यूजिक परफॉर्म करता है, कोई रॉक स्टाइल में गाता है, राइट, तो उसमें थोड़ा सा एक ग्रंज और एक डिस्टॉर्टेड वोकल्स और इस तरीके से ग्राउलिंग वोकल्स रहते हैं। एक अलग जोन है अग्रेशन के उसमें। कोई भी चिल्ला के बोलेगा या गाएगा तो वो अग्रेशन ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। So, कोई भी ये चीज कर सकता है एंड इट इज वेरी नॉर्मल। And हमारी Gautama ji है who wanted to ask कि can I add on something to music and rap if someone allows me, like you know, अगर आपने गाने के बीच में रैप को मिक्स कर दिया तो आप उसको रैप कहेंगे या सिंगिंग कहेंगे? गाने के बीच में अगर आपने रैप को मिक्स कर दिया, वर्ड्स एक छोटा सा पोर्शन ऐड कर दिया, तो जैसे हम रैप बोलते हैं कि रैप इज ओके, इट्स नॉट जस्ट यू नो समथिंग सेइंग विदाउट, जल्दी बोलेंगे तो रैप हो गया, ऐसा नहीं है। नहीं। Yeah, so it's something very different concept altogether. जो हम बोलते हैं उसके बीच में एक रैप का पोर्शन है। देखो, जैसे अगर मान लो कि पूरा ही 3 मिनट का गाना है जिसमें 30 सेकंड का रैप है, तो उसको आप प्रॉपर रैप सॉन्ग नहीं कह सकते, ठीक है। अगर पूरे गाने में रैप चल रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि जो गाने का हुक है वो गाया हुआ है बट जितने भी वर्सेस है उसमें रैप है, तो आप उसको एक रैप सॉन्ग कह सकते हो। तो बेसिकली बात यह है कि पहले जब स्टार्टिंग के टाइम की बात है, जब इंडिया में रैप आया था, तो रैप 8 लाइन 10 लाइन से शुरू हुआ था गानों में आना, है ना। जैसे हनी सिंह हो गया, या फिर कितने सारे ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने रैप को ग्रो करने में कितनी हेल्प करी है। सबसे पहले मेरे ख्याल बाबा साइकिल ने बड़ा अच्छा किया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर बाबा साइकिल एंड बोहेमिया सर। हाँ जी, बोहेमिया। और पहले हाँ जी हाँ जी बोहेमिया जी तो अभी आए हैं, बाबा जी बहुत पुराने, जब हम कॉलेज में थे तब बाबा साइकिल। हाँ जी सर। बिल्कुल अच्छे थे। बिल्कुल। बस वही चीज है कि जिस टाइम पे लोग रियलाइज करते हैं वो उस टाइम से ही मानना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी के टाइम पे क्या है कि जैसे अभी सबको पता है कि बाबा साइकिल भी बीच बीच में कुछ गाने डालते रहते थे, है ना। अभी इन दिनों भी डाल रहे थे, तो मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। मैंने कहा कितनी अच्छी बात है, वो लोगों ने कितने टाइम से कर रहे हैं और वो अभी भी कर रहे हैं। हाँ, तो वो बहुत बहुत सही चीज है। और दूसरा ये कि चाहे हनी सिंह हो या कोई भी आर्टिस्ट हो ना, कोई भी जो भी म्यूजिक कर रहे हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, सबके पास एक अपना ओरिजिनल स्टाइल है एटलीस्ट। सही बात। सबके अंदर एक ओरिजिनलिटी है, सबके अंदर एक सच्चाई है, जिसकी वजह से वो लोग आगे आते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो अरविंद शर्मा जी कहना चाह रहे हैं कि आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद श्री मूफाड़। आई एम 100% श्योर उन्होंने आपको पहली बार देखा और पहली बार सुना होगा। आई एम इम्प्रेस्ड टू। थैंक यू सो मच। उषा फेनन जी हैं, वो लिख रही हैं, मूफाड़ सर, हु इज योर इंस्पिरेशन, हु लेड यू टू रैपिंग? आई गेस एमिनेम, बोहेमिया, इन लोगों की वजह से लिखना शुरू किया था मैंने। टूपाक। बट देखो, मैंने सही बताऊं, जैसे शौक में शुरू करते हैं ना, तो ऐसे में एमिनेम का बहुत बड़ा रोल है ना। लिंकिन पार्क का बहुत बड़ा रोल है। ब्लैक आइड पीस करके एक बैंड है, उनका बहुत बड़ा रोल है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट को सुन के उसके बाद मैं फिर करना शुरू किया। तो इंस्पिरेशन तो बहुत सारी है ना। जो चीज सुन के मुझे अच्छी लग जाए और मैं उसको एग्जैक्ट बना पाऊं, वो मेरे लिए सक्सेस होती है। कि अगर मैंने कोई चीज सुन के बना दी तो सही है मेरे लिए। कुछ अपनी प्रजा के लिए भी कहिएगा, पर उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट किसी का मैसेज लेना चाहूंगी, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन चेंज, वेयर वी कैन चेंज द रैप इंडस्ट्री ऑल टुगेदर। बिग बॉय अकी FBA ये लिखना चाह रहे हैं कि सर, क्या स्टडी मैटर करती है रैप करियर में? नाउ लाइफ की स्टडी मैटर करती है, किताबों वाली स्टडी पता नहीं। हाँ, उसका नहीं पता। किताबों वाली स्टडी का सिर्फ एक सीन है कि वो आपके आसपास जो चीजें हैं ना, उसकी नॉलेज अच्छी करेगी अबाउट द इवेंट्स दैट हैपेंड इन द हिस्ट्री, है ना। और जो भी सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बीइंग सिविलाइज्ड,
अगर आपको आपके आसपास की चीजें नहीं पता है ना, तो वो वाली चीज है कि पढ़ाई और उसका किताबों का एक अलग रोल है, बट आपको जो लाइफ सिखाती है वो बहुत बड़ी चीज है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जी सर, घर वाले फोर्स करते हैं तो सर क्या किया जाए, इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो फोर्स करते हैं तो करने दो, क्या हो गया, उनका काम है। नहीं सर, मन ही नहीं लगता है। जब बैठते कॉपी नोटबुक लेके तो लिरिक्स लिखे जाते हैं और स्टडी माइंड में घूमती नहीं है। देखो एक बात बताओ मेरे को, आपका नाम क्या है? एक मिनट को, आपका नाम है अकी। हाँ तो ब्रो, अगर वो आपको फोर्स कर रहे हैं ना तो उसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन ये है कि वो आपका कुछ ना वो चाहते हैं कि आप किसी भी ना चीज में फंसो ना आगे जाके, है ना। क्योंकि हमारी जो फील्ड है ना, हमारी फील्ड के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इट इज वेरी कॉम्पिटिटिव, बहुत ज्यादा कंपटीशन वाली है कि हाँ जी सर, यही होता है। करोड़ों में से किसी एक का नंबर लगता है ना, ऐसी ऐसी बातें करके हमें डराया जाता है। यही वाली बात, सबका नंबर आता है बट टाइम के साथ आता है, पेशेंस। तो आप अपना काम करते रहो, आपके घर वालों को दिखेगा कि आप मेहनत करते रहो। हाँ जी सर, पहले वो रोकते थे बट अब मैं कुछ करता भी हूँ तो वो बस देख के चले जाते हैं, कहते नहीं है। तो वो धीरे धीरे करके होगा ब्रो, लाइक धीरे धीरे करके उनको भी पता लगेगा कि दिस इज व्हाट यू वांट टू डू। I will request please, जहाँ से भी साउंड आ रही है, जिनके भी अपने माइक से प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए, अदरवाइज इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम। Do you want me to tell the admin to take them out of the meeting? Okay, MC मुझे पता लग गया किसके उससे आ रही थी आवाज। ये उषा फैनिन की उससे आ रही थी। I got you. Gotcha. MC सफर कहना चाह रहे हैं, पूछ कि मेलोडिक वाइब्स सॉन्ग को भी क्या रैप बोलेंगे? मेलोडिक वाइब में अगर कोई सॉन्ग है तो उसको रैप बोलेंगे, ये पूछना चाह रहे हैं जी। देखिए आप किसी भी गाने में अगर आप रैप डालते हो, जैसे मैंने बताया कि प्रोमिनेंटली एटलीस्ट वर्सेस तो रैप में ही हो, तब जाके आप उसे रैप सॉन्ग बोल सकते हो, वरना एक वो नॉर्मल सॉन्ग ही बोला जाएगा, है ना। मींस दो लाइन सुनाता हूँ। मैं तेरा ना रहा जब तूने ये कहा, मैं ऐसे बंदों पे नहीं मरती मेरे जान। दिस साइड है। तो आप ये पूछ रहे हो ये रैप है क्या? यस सर। नहीं, ये रैप नहीं है, ये गाना ही है। ये गाना है। हाँ, ये गाना है। Sir, can I add something about rap and music? Yes, for sure. Yes, sir. Sir, according to me, sir, मैं सर भी बहुत भूमिया सर को फॉलो करता हूँ, तो बेसिकली आई एम अ सिंगर एंड आई डू रैप आल्सो। सो मैं पीटी से पंजाबी, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, तो ही सेज कि व्हाट इज रैप बेसिकली रिदम एंड पोएट्री, इट इज एन एक्रोनिम which stands for rhythm and poetry. So जो लिखावट होती है वो आपके अपने जिंदगी के तजुर्बे और एक्सपीरियंस से आती है, एंड जब आप उसको सिंक में रिदम में उतार दो तो वो पोएट्री हो जाती है, और जब आप उस पोएट्री को म्यूजिक के बीट्स पे ले आओ देन इट इज कॉल्ड रैप। सो हाँ जी सर। तो सर and so means music is something which is related to the composition and production of notes within, and rap is something when you write something with your own experiences of life, and it is with the sync of the rhythm at the end, and basically it is your own experiences, and when you put those lines on your beats, so that is called rap, according to me. एंड सर मैंने उनके काफी इंटरव्यूज को फॉलो किया था, सो लाइक उनकी एक रैप है कि सोचा मैं रोज हजार गल्ला मेरे ज़हन ते सवार, मेरे तो तेज मेरी सोच तो तेज मेरी ज़बान, मेरे हत्ते या फिर सोचा मैं। तो मतलब कि जो उनके जितने भी लाइंस हैं वो उनके अपने एक्सपीरियंसेस से ही आए हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ जी सर। हाँ जी सर। मेरी लास्ट ईयर मीटिंग हुई थी मिका पाजी के घर, हम ना गा रहे थे कुछ, तो भीमिया मेरे साथ कीबोर्ड प्ले कर रहे थे, मेरे गाने में कुछ गाया उन्होंने इंग्लिश में और हिंदी में मिक्स करके, तो मैंने ये देखा कि वो जोर नहीं लगाते रैप करते समय, वो बहुत सॉफ्टली गाते हैं,
बिल्कुल। हाँ जी सर। तो बड़ा मजा आया जितनी देर गाया। मेरे को ज्यादा बीच में समझ नहीं आया, जो पंजाबी वाला या हिंदी वाला था वो तो ठीक था, बट मेरे को ये अच्छा लगा कि वो ना डिफरेंट सा ये लगा कि वो बड़ा सॉफ्टली बात को कह देते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी सर। हर बंदा समझ जाता है क्या हो रहा है। हाँ जी सर। सर कई उन्होंने ना कई बहुत लाउडली करते हैं ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। अपना अपना स्टाइल है जैसे। हाँ जी सर। हाँ तो बट अपना सुनो सबकी करो अपनी। Yes sir, yes sir. चलिए सर, I guess we would want to, you know, we are coming to the end of this opening ceremony and मुफार जी के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आई पड़ी है, जो कि अभी तक बोल नहीं रही थी, उनको कुछ सुनाने के लिए कि कुछ सुनाए। तो अब सबने शोर मचाना शुरू किया है कि मुफार जी को कहिए तो सुना भी दें हमें अपनी प्रजा के लिए। आप बताइए गाने का नाम बताइए, क्या सुनाना है सुना। इंस्टाग्राम लाइव ईगो फ्रेंडली सुन लेते हैं। अच्छा किसने मैंने सुना है। कोई एमिनेम आप रैप कर दो। भूत बनेगा। यार ऐसे तो बहुत सारी हो गई। मैं अपनी मर्जी से कुछ कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम लाइव सुना दीजिए सर। मैं आपको सुनाता हूँ गाना। कुछ फ्रीस्टाइल हो जाए। रुको मैं खुद ही ट्राई करता हूँ। मैं कुछ बताऊँ। और अभी आप बैक लेना जब मैं रैप करना शुरू करूँगा। ओके सर ओके। कौन सा सुनाऊँ यार? चलो ईगो फ्रेंडली सुनते हैं। क्या देता? सो गाने का हुक है कि बंदा मैं ईगो फ्रेंडली, आती आवाजें हैं लौट के, मैं सबसे ऊंची जमीन पे, कॉल मम्मी कर दूंगा पहुंच के। सो क्या था? खुद से हूँ वाकिफ मैं तृप्त हूँ, भूले ना भुलाए ऐसी ट्रिप दूं, भगवान शैतान से ऊपर है महाराज, तेरी मैयत पे बियर की सिप लूं, मरे को मारू तो डार्क है, फ्यूचर है ब्राइट गाने स्पार्क है, आके मार लो छापे सफेद है कमाई, काला जादू करता सिद्धार्थ है, स्कैरी नहीं क्रीपी तू मारियो के ड्रैगन सा, आके काम संभाल ले मेरे बैकएंड का, हिंट पे हिंट तू प्रजा वाले जानते हैं, ऐलान गाना नहीं था वो रैकेट था, अब गेम ही नहीं खेलता मैं फेयर वाली, पीछे बोले गालियां खाएगा तू जहर वाली, दर्जी को सिखा मत फाड़ने का काम, तू मेरी सिलाई मशीन वो भी पैर वाली। बहुत सही सर। जैसा कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, सब बंद पड़ा हुआ है, तो आर्टिस्ट लोग ऊपर आने के लिए मतलब ब्रो अब तो खुल गया, अब तो बहुत कुछ खुल गया है यार। अब कहाँ बंद है? एक बात बताओ। हेलो एक सेकंड में पूछूं? रुको ब्रो, अभी वो बात कर रहे हैं, उनको बात करने दो। रुको ठीक है आप बोलो। हाँ जी सर। तो जैसे कुछ चीजें तो खुल चुकी है, लेकिन अपन अपना कम्प्लीटली अब बाहर नहीं आ सकते। तो जैसे कि आर्टिस्ट लोग पहले कॉम्पिटिशन्स में अपन बाहर जा सकते थे शो करने, और लेकिन जैसे हम अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है, तो हमको ऊपर आने के लिए और क्या करना पड़ेगा जिससे हम काम करो, गाने बनाओ यूट्यूब पे डालो, बस इतना सा ही काम है और कुछ नहीं है। सर जैसे मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो मैं किस टाइप का रैप करूंगा जो लोगों को पसंद आए, वो थोड़ा सा आप बता पाएंगे? जैसा आपने जीवन जिया है, जैसे आप गलियों में निकले हो, जैसे आपके आसपास दोस्त हैं, आप ऐसी ही बातें करोगे। ओके सर। जिनको पसंद आएगा वो सुनने वाले आ जाएंगे, जिनको पसंद नहीं आएगा वो आगे चलते जाएंगे, बहुत सिंपल है। यस सर। मैंने कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। सर आई हैव आल्सो अ क्वेश्चन। सर कैन आई नो एक बंदा बोलो ब्रो, एक बंदा बोलो। हाँ जी सर, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक तो होता है कि आप म्यूजिक पे कुछ लिख रहे हो, ठीक है? हाँ जी। और एक हो रहा है कि कुछ लिख के आप उसका म्यूजिक तैयार करवा रहे हो, तो कौन सा भी राइट है उसमें? म्यूजिक पे कुछ लिखना है? दोनों चीजें सही है, सही गलत का वो नहीं है इसमें। जो चीज आपको पहले हिट हो जाए, अगर आपको कोई लाइन पहले मिल गई है ना, और आपने कंपोज कर लिया है, आपके दिमाग में आ गया पैटर्न के ऐसे कुछ कंपोजिशन होगी, तो आप ऐसे कर लो। अगर आपको बीट सुन के करना है, अगर आपने कोई बीट सुनी और आपको बीट सुनते के साथ ही कोई लाइन या कोई वर्ड्स दिमाग में आ गए, तो आप उस पर भी लिखना शुरू कर सकते हो। जी सर। और सर एक क्वेश्चन और था, जैसे कि ये जो डेफिनेशन है मेरी, आप बताएंगे सही है? मतलब जो हिप हॉप होता है वो होता है कि आप सामने वाले को कम शब्दों में और कुछ मतलब बता सकते हो, सिखा सकते हो, यू नो, जो कहना चाहते हो आप अपनी बात रख सकते हो। हाँ जी, बात रख सकते हो।
ये भी है जी सर। तो आप सामने वाले को कम शब्दों में मतलब कुछ कह सकते हो, समझने वाले की बात है वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डेफिनेशन होती है कि हिप हॉप की। देखो हिप हॉप का मैं तुम्हें ना ब्रेक कर देता हूँ कि क्या होता है। हिप हॉप में 2 वर्ड्स हैं, हिप और हॉप, ठीक है। हिप इज ऑल अबाउट नॉलेज, हॉप इज ऑल अबाउट मूवमेंट। जी सर। तो जो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है और मूवमेंट होता है बेसिकली कि हिप हॉप एक जॉनरा बनने से पहले एक मूवमेंट था इसमें ब्लैक्स प्रोटेस्ट करते थे, है ना, आज के टाइम पे जब रेसिज्म बहुत ज्यादा हुआ था उन लोगों के साथ। तो वहां से शुरू होते होते वो एक आर्ट फॉर्म में डेवलप हुआ, क्योंकि लोग लड़ना नहीं चाहते थे, कि कोई फिजिकल वायलेंस नहीं चाहता था, लोग चाहते थे आर्ट के थ्रू ही हम मसला सुलझा लें, है ना। तो वो करने के बाद करते करते फिर वो म्यूजिक जॉनरा में तब्दील हुआ, फिर आगे जाके इतना बड़ा जॉनरा बन गया, देख लो वर्ल्ड वाइड चलता रहा। तो हिप हॉप इज ऑल अबाउट टेलिंग योर स्टोरी, व्हाट यू फील, आपकी सोच क्या है, दैट इज हिप हॉप। सर रेट्रो म्यूजिक में रैप हो सकता है? क्या चीज? रेट्रो म्यूजिक, रेट्रो जैसे म्यूजिक पुराने गाने हैं उनमें रैप हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। आप एक तानपुरा चला दो, सिर्फ उस पर भी हो सकता है, मैं वही बता रहा हूँ। करने वाला होना चाहिए ना, हर जगह हो सकता है रैप। Okay. काफी सन्नाटा हो गया एकदम से। हाँ, I guess, yeah, I guess we have taken a lot of time of yours. हम लोग I guess अब we should call it a day. We should call it a day. मिलते हैं क्लोजिंग सेरेमनी में। इन बिटवीन मुफाड़ आपके सारे और जो हमारे बाकी जजेस हैं, बीमैक, तेजी संधू जी, सुधीर यदुवंशी जी, ये सब आपके इवेंट्स, आपके सब एक एक परफॉर्मेंसेस को देखेंगे, जज करेंगे और हम मिलेंगे आप क्लोजिंग सेरेमनी पे। प्रेफरेबली ज़्यादा टाइम लेकर आएंगे सो दैट आप लोग अपने जजेस से बात कर सकें और जजेस भी तब आपको जान पाएंगे कौन किसने कैसी परफॉर्मेंस करी, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाएंगे और आपको जज कर पाएंगे, आपको सजेस्ट कर पाएंगे व्हाट बेटर टू डू। अभी तो हम ऐसे ही बातें कर रहे हैं, आई गेस हम 1 नवंबर को मिलेंगे तो हम और रियलिस्टिक बातें करेंगे। एक लास्ट परफॉर्मेंस अगर हमें दे सके, केजीबी, मुफाड़ की, कोई भी दोनों में से या दोनों की प्रोबेबली, एंड लेट्स कॉल इट ऑफ। मुफाड़ पे आप एक मैं चाहता हूँ कि जो तेजी सर यहाँ पे बैठे हैं ना वो गाएं कुछ, मेरा गाना सुनने का मन है बड़ा। आई गेस यहीं पे है ना, भी गए नहीं। तेजी जी आपका म्यूट तो नहीं है आपके बारे में? हाँ जी मेरा पहला गाना लॉन्च हुआ था 2006 में। वो गाना लिखा था गुरप्रीत घुग्गी पाजी ने, जो पंजाबी कॉमेडियन है। हाँ जी। तो उसमें हरभजन सिंह भज्जी जी ने मॉडलिंग की थी गाने में। तो वो गाने की 2 लाइनें सुनाता हूँ। बीट गाना था, शादी वाला गाना था थोड़ा। इसमें भाई आप रैप बनाना, कोई बड़ा अच्छा बनेगा। एक चीज मैं बनानी बिल्ल तू बन जा, नी तू बन जा, आजा मेरे मापियां दी नूं बन जा। एक चीज मैं बनानी बिल्ल तू बन जा, नी तू बन जा, आजा मेरे मापियां दी नूं बन जा, आजा मेरे मापियां दी नूं बन जा। एक बारी प्यार नाल वेख तेजी वल नी, भुल जावे जग सारे आशिकां दी गल नी। आओ एक बारी प्यार नाल वेख तेजी वल नी, भुल जावे जग सारे आशिकां दी गल नी। लैला नाल वध वेख प्यार मिलदा नी, प्यार मिलदा। एक बारी कह दे मजनू बन जा, एक चीज मैं बनानी बिल्लो तू बन जा, तू बन जा, आजा मेरे मापियां दी नूं बन जा, आजा मेरे मापियां दी नूं बन जा। ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। चीज मैं बनानी बिल्लो तू बन जा, नी तू बन जा, आजा मेरे मापियां दी नूं बन जा, आजा मेरे मापियां दी नूं बन जा। बहुत सुंदर आवाज है, बहुत सुंदर आवाज है, मजा आ रहा है। थैंक यू मुफाड़ भाई, बहुत बढ़िया। अभी आपका रैप होना चाहिए, रैप होना चाहिए। हाँ सर, एक रैप तो करो।
अच्छा चलो एक रैप करते हैं, उसके बाद आएंगे इसको। बाकी से प्लीज अपना ऑफ करिएगा, माइक ऑफ करिए प्लीज। देखो मैंने आप लोगों के लिए ना मेरी चाय ठंडी कर ली है पीछे पड़ी हुई। मैंने तो पी ली। मैंने स्टील के गिलास में भी पी खत्म कर दी। कपूरथला। हाँ बिल्कुल। अच्छा कपूरथला से आप? यस ये मेरा गांव है, मैं गांव जो मेरे साथ में टीम में एक बीट प्रोड्यूसर है, कर्तव्य नाम है उसका, वो भी वहीं से है। अच्छा। हाँ जी, रहता दिल्ली में ही है बट उसका बैकग्राउंड नहीं है। तो अभी आप दिल्ली रहते हो या बॉम्बे रहते हो? मैं दिल्ली हूँ अभी तो फिलहाल। अच्छा। मतलब मेरा जन्म तो यहीं पे हुआ है, यहीं के पले बड़े। मैं प्रिया जी से नंबर लेता हूँ, फिर हम मिलके कुछ बनाते हैं। श्योर। जी वूफर, आपसे एक गाने की रिक्वेस्ट, प्लीज अपने बाकी से माइक ऑफ करिए। मैं बैकफ्लिप सुनाता हूँ आप लोगों को, उसका जो रैप का वर्स है। क्या था? हाँ, आंसू पहुंच शांत दिमाग से सोच बैठ के, ऐसा भी क्या हो गया तू ब्रेकअप कर रही है चैट पे। मैंने किताबों में हिसाब कभी लिखा नहीं प्यार का, तभी एक्स की वैल्यू पता नहीं लगे पड़े हैं मैथ्स के। भले मॉडल्स मेरी वीडियो में पर आंखों में है तू, मुझे जो चाहिए था जिंदगी से तू बिल्कुल हूबहू। तुझसे बात करता हूँ तो गवाही देती रूह, तू शौक ना मेरी आदत है तू आज भी सुकून। तू ही गिना दे चल गलती मेरी लास्टिक, म्यूजिक तुझसे ऊपर है मैं ऊपर से हूँ नास्तिक। बाय गॉड तू ऊपर वाले से ऊपर थी मेरे लिए, अंधा विश्वास नहीं थी मुझसे ज्यादा वास्तविक। तो इस तरीके से था इसका सेकंड वर्स था। बन जाते ये बहुत ज्यादा मेरे ना दिल के क्लोज है ये वाली लाइंस, तो इसको ध्यान से सुनना। बन जाते मसले हैं ना बनाता नहीं, होता वही है जो मैं चाहता नहीं। खुश तो है साथ बस फर्क है इतना कि तू है एक त्योहार जो बेबी मैं मनाता नहीं। रहले औकात में दिमाग मेरे दिल से कहता, हाथ कांपते थे मेरे जब भी तुझ पे लिखने बैठा। लिख डाला आज हर तारीफों की जलालत में, वकालत सुने भी कौन मोहब्बत की अदालत में। मुझे हराना या मुझे हारना चाहता है, देख आंखों में मेरी तू मुंह से झूठ निकल जाता है। ना सही ना गलत बस एक बेवजह की बहस में हर बार तेरे प्यार का वजूद बिखर जाता है। बिन गलती गिल्टी कितनी बार नहीं है गिनतियां, मैं ब्लेस्ड हूँ या कर्स्ड समझ नहीं आता सीन क्या। तू मांगे वक्त पर ये म्यूजिक मांगे जिंदगी, इसने काफी कुछ देके मुझसे काफी ज्यादा छीन लिया। बहुत बढ़िया। ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल Too good, sir. थैंक यू सो मच। बीमैक, हाय कार्ति जी, एक Yes, लास्ट what's आपका up? beatboxing and then we'll call it the day to meet again on the first. Oh yeah, for sure. For sure. Let's just hit out a small verse. It's a bullet rap. I wrote that thing pretty long back. So yeah, it goes like this. They say I can rhyme so, make a bag of beats, get it, so demon getting out of control, losing the brains, and that's light in the mind. I crawl, make it Alice in the vision of a tremendous flow, the venomous road, echo to the face of the cross, step into visit the fighting bitches, the lyrical golf, the fights is raw. So this is a bullet rap that I wrote pretty long back. So I can go ahead with the bullet rap, and we can start writing a lot of different other stuff. So I have another thing. It's triple A. It goes like this. If you could change the struggling world for a second, watching paradoxical wishing, enlighten the crusade of the great visionaries in the mystical prison, the brighter the day, the better your call, the fat is a state between the wall, galloping all of the west, if in the mind, sticking that upon the mic and flavoring floors, watching places where you were never supposed to be, is it the cause of the various streets and the spirits of many your city, competing the supernatural evil. So this tracks, I speak about internal connections of the cosmic, because I write about esoteric stuffs, right? It's never commercial. I never do commercials. So that's about it. I just wanted to hit out a couple of verses there. And let me hit out a small beatbox if you guys love it, yeah? Okay, it's from West Side Story by The Game. Wow. Beautiful, बहुत बढ़िया। Respect, straight up respects, brothers. बहुत बढ़िया। मैं इस बीट में कुछ गाना चाहता हूँ।
No, bas, that's it. I guess too much for the day. We should respect judges' times as well. I'm sure they have many other things to do. ऐसे हमारी तो दिन कभी खत्म ही नहीं होगा. I'm 100% मेरा तो दिन ही अब शुरू हुआ है. मेरे को शुरू करने दो मेरा दिन. भाई का दिन अभी शुरू हुआ तो. Okay, then go ahead. Yeah. So it was really nice talking to everybody. Thank you so much, Priya ma'am. Thank you so much. You can call me Priya. Yeah, it's okay. Thank you. Pleasure. It's a pleasure. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Bye-bye. Okay, guys. Take care. सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल. Bye-bye. Bye-bye.